प्रभात भाई साहब के अनुसार सारे भाई बहनों में सबसे ज्यादा लविंग और सबसे ज्यादा केयरिंग पिताजी थे और लच्छे बुआ जी थी। Remembering Ram Mamaji today on his birth centenary, which falls on 15th of April. At this juncture, a lot of my memories instantly comes to my mind. Way back in 1972, when I got married to Sunita in Idgah Colony, Agra, Mamaji was there, and when I got introduced to him, I was greatly impressed by his softness, humble nature, forthcoming, and talking very intimately. And I developed an instant liking for him. During marriage, lot of hustle and bustle was going on, but I could squeeze some time to interact with Mamaji. We must have spoken for 7, 8, 9 minutes, and I just like to share with you, Mamaji was in banking sector, and he was aware of all nitty-gritty of professional life, problems faced in industry or in office. So after knowing my profile in industry, he came and advised me. Very softly he told, अशोक देखो आप यंग हो, नए नए आपने इस लाइफ में हो, बहुत चेंजेस आपको मिलेंगे, बहुत चैलेंजेस मिलेंगे, बहुत मुश्किलात भी आ सकती हैं, ये बहुत स्वाभाविक है, इसमें कोई नई बात नहीं है। पर मेरी एक एडवाइस तुम याद रखना कि कभी भी ऐसी डिफिकल्टीज हों, मन में उथल पुथल हो, प्रॉब्लम्स हों, तो उन प्रॉब्लम्स को फैक्ट्री के गेट के अंदर ही छोड़ के घर आना, क्योंकि घर एक ऐसी सुकून वाली जगह है जहां मेंटल पीस, शांति और एक दूसरा एटमॉस्फेयर होता है। अगर इन दोनों चीजों को अलग रखा जाए तो लाइफ बहुत स्मूथ होती है। तो ये जो लर्निंग थी, मैंने कोशिश करी कि हमेशा मैं उस पर अमल कर सकूं, और मुझे लगता भी है कि मैंने वो पूरा उसी तरह से निभाया है। एक और बात याद आ रही है, 17 तारीख को हमारी नवंबर में शादी हुई थी। अगले दिन जब विदाई का टाइम था, जो भी डोली वगैरह होती है, तो उसमें पूजनीय अम्मा और मामा जी आगे थे, जिन्होंने सुनीता को कार में बिठाया, अश्रुपूर्ण आंखों से विदाई करी। जो जैसा उस टाइम माहौल होता है वैसा ही था। तो यादें तो बहुत हैं, पर अपार्ट फ्रॉम दैट I would like to share something interesting. Every year, during vacations of children, on our annual sojourn, we used to travel by Kalka Mail to Agra. And the train used to stop for 2-3 minutes at Etawah station or junction, I don't remember. Once Mamaji came along with Mamiji, but on 2 occasions, he had come alone. He was kind enough to spare some time and come and meet us. And that silver lining was that my children, they used to wait anxiously for that opportunity to relish those sweets brought by Mamaji. And after that, on several occasions, I met Mamaji in Agra, where he had used to come to meet my mother-in-law, his sister, Ammaji. And every time, our discussions were very healthy, enjoyable. And I got few letters also when there was some problem, medical problem in my family in Calcutta. Mamaji used to write very encouraging letters. So won't take much of a time, and at this occasion, I would pay my
homage, Shraddhanjali to respected Mamaji, and will pray that he continue showering his blessings from his heavenly abode to all the children and family members so that their life journey becomes inspiring and joyful. Thank you so much. Namaskar. Anu says that he had known Phupaji closely since 1964 when he first came to Mathura from Hyderabad. I admire and respect him for his straightforwardness and self-respecting nature. Although at that time I was small in age to understand and admire such a great character of his fully, but later on, as I grew older, I started admiring him more. He had a straight backbone. My salute to him. He was a jovial and young at heart person. He used to mingle with young ones like us. That is why I had liked his company. This was the reason that we, that is me and Ani, had spent many of our vacations in Etawah. In Etawah, there used to be a group called Khangar Party. Since I visited Etawah many times, I was included in that group and was named as Gora Khangar. To highlight Phupaji's young at heart nature, I like to mention one incident. It was 25th January 1971. Phupaji, Ashok, Munnaji, and one Gappu came to Mathura from Etawah by one Rajdoot and a bullet motorcycle all the way to go to Delhi to attend that year's Republic Day parade. I joined the party, but I was fifth member for whom there was no place on those two motorcycles on which they had come from Etawah. To accommodate me, Munna Chachaji's Lambretta scooter was borrowed. Well, that was his love for me. I was crazy about driving motorcycle at that age of around 17, and if I could get to drive long distance, nothing like that. You see, nobody used to bother about driving licenses, etc. in those simpler times. Cut to 26 January 1971 night in Delhi. After attending the Republic Day parade in the day, among five of us, only Phupaji was senior, otherwise we all other four were under 20. It was Phupaji's suggestion that let us first watch Devanand's movie Hare Rama Hare Krishna, which was super duper hit at that time, in the night show 9:30 to 12:30 a.m. Perhaps we tried but could not get tickets. So Ashok says that we had then gone to Palace Theatre in Sabzi Mandi area and watched a movie by the name of Ban Phool, starring Babita and Jitendra. The movie was so boring that after the interval we went to Ashok's hostel. In any case, we had to start back for Mathura Etawah on the 27th morning. Phupaji had an adventurous nature and he suggested that we start in the midnight itself. We could somehow locate a petrol pump which was open at the time and started driving in a dense fog towards Mathura, where we could barely see the backlights of the bike we were following. Around 6 a.m., braving the chill on two-wheelers, we reached 32 Jagannath Puri, where everyone was surprised to see us. Nobody can imagine this today, but we did that. We all looked up to Phupaji's enthusiasm and Munnaji's mechanical skills for any contingency regarding our two-wheelers. Phupaji had a great risk-taking appetite like youngsters. That was my Phupaji. He had many other qualities too. My regards and tribute to him from the bottom of my heart on his 100th anniversary. मैं अर्चना भरोत्रा अपने फूफा जी रामचंद भाटिया के 100वें वर्षगांठ के
स्मरण उत्सव में कुछ अपनी यादें शेयर करना चाहती हूँ। हमारे इकलौते फूफा जी बच्चों को बहुत ही दुलार करने वाले, हमारे हर पसंदीदा काम में दिलचस्पी लेने वाले। मेरी यादों में उनका हंसमुख बात करने का अंदाज निराला ही था। कई बार उनके पास रहने का मुझे सौभाग्य मिला। जैसे हम भाई बहन जितना नानी के घर जाने में खुश होते थे, उससे भी अधिक बुआ के घर जाना दिलचस्प होता था। मथुरा में घर होने के कारण जल्दी जल्दी मिलते भी थे। यहाँ मैं 2 बार की यादें जरूर शेयर करना चाहूंगी। जब अशोक भाई फूफा जी के बेटे देवास में थे, तब मैं भी उन लोगों के साथ गई थी। बहुत मजा आता था। भाभी भी नई थी, हम उम्र होने के कारण सहेली जैसी लगती थी। फूफा जी के साथ घूमने भी जाती थी। एक बार जब मैं उज्जैन महाकालेश्वर के दर्शन करने गए, रास्ते में फूफा जी बोले, स्कूटर चलाना सीखो। मुझे लगा मजाक कर रहे हैं, लेकिन आज भी विश्वास नहीं होता। पहली बार उन्होंने स्कूटर चलाना सिखा दिया। यही उनका तरीका था कि आपको अपने ऊपर विश्वास दिलाने का कोई भी कुछ भी कर सकता है, लड़की होने से क्या होता है। जब मैंने केवी की नौकरी शुरू की, तब फर्स्ट पोस्टिंग मथुरा हुई। तब बुआ जी के पास रहने गई, वहीं से स्कूल जाती थी। तब पता चला फूफा जी को घर और किचन में काफी इंटरेस्ट था, खाना बहुत अच्छा बना लेते थे। तब श्रुति भी वहीं उन लोगों के पास रहती थी। बुआ जी को बहुत ही मदद करते थे फूफा जी। बहुत शांत स्वभाव थे। टावा की कुछ यादें थोड़ी सी बाकी हैं। तब हम लोग बहुत छोटे थे। पिक्चर देखना, हम सब बच्चों का पहले दिन पहला शो दिखाना उनका बहुत बड़ा शौक था। फूफा जी को याद करना और उनके परिवार का अटूट हिस्सा होना हम सभी के लिए गर्व की बात है। उनका सहृदय और समझदार होना बाकी सभी से उन्हें अलग बनाता है। वे हमेशा मुझे छोटी लच्छे ही कहा करते थे। उनकी यादें हमेशा हमारे बनी रहेंगी। Mukta says that though all have lots of remembrances related to respected Tauji, but I am finding it an uphill task. How do I do this? A straightforward, well-mannered, and a classic personality was he. If I can utter personally, I have grown up to attach a good reading habit and keep low, straightforward with all the life's every sphere. It is all that I can express in few words. सीमा ताऊजी को सादर प्रणाम करती है, कहती है कि उनकी स्मृति ही हमारे हृदय में है। शादी से पहले की बहुत सारी यादें हैं। शादी के बाद गुड़िया आकांक्षा को लेकर दिलशाद गार्डन वाले घर गई थी मिलने। ताऊजी के मुख पर जो मुस्कान थी और नाना बनने की जो खुशी थी, उसको मैं शायद शब्दों में वर्णित नहीं कर पाऊं। ताऊजी को मेरा शत शत नमन है। आदरणीय राम ताऊ जी की 100वीं पुण्यतिथि पर सादर नमन। ताऊ जी मेरे लिए न केवल एक मार्गदर्शक थे, बल्कि वे हर किसी को खुश रखने वाले, हंसने हंसाने वाले और सभी छोटे बड़ों को प्रेम देने वाले व्यक्ति थे। जब वे 32 नंबर में आते थे तो उनके पास काले रंग की राजदूत मोटरसाइकिल होती थी। हम बच्चे उसकी आवाज़ सुनकर बड़े आनंदित होते थे और ताऊ जी उस पर बैठकर बेहद स्मार्ट लगते थे। एक बार जब वे 32 नंबर में रह रहे थे, तब मैं पंतनगर से कुछ दिनों के लिए मथुरा आया था। वो गर्मियों की रातें हुआ करती थीं और हम रात को छत पर बिस्तर लगाकर सोया करते थे। एक रात ताऊ जी ने हम बच्चों से कहा कि एक एक करके बताओ कि बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। सभी ने अपनी अपनी इच्छाएं बताईं और उसके बाद आखिरी में उन्होंने हमें समझाया, जो भी करो ईमानदारी से करना, मेहनत से करना। हो सकता है सफलता मिलने में थोड़ा समय लगे,
लेकिन यदि तुम सच्चाई और परिश्रम के मार्ग पर चलते रहोगे तो अवश्य आगे बढ़ोगे और तरक्की करोगे। आज भी उनकी ये बातें मेरे हृदय में अंकित हैं और मैं उन्हें जीवन में अपनाने का प्रयास करता हूँ। आदरणीय ताऊ जी की 100वीं पुण्यतिथि पर मैं उन्हें सादर दंडवत प्रणाम कहता हूँ। सभी को नमस्कार। श्रद्धांजलि आदरणीय राम ताऊ जी को। आदरणीय राम ताऊ जी एक ऐसे इंसान थे जिनमें गजब की समझ, अटल स्नेह और नरम लेकिन मजबूत मार्गदर्शन था। वो कभी बेवजह ऊंची आवाज में नहीं बोलते थे, लेकिन उनकी कही हर बात का असर इतना गहरा होता था कि उसकी असली अहमियत हमें उम्र के साथ समझ में आई। मुझे आज भी बचपन की एक घटना बहुत अच्छे से याद है। एक शाम साइकिल चलाते हुए मुझे चोट लग गई थी और रात को खाने में खट्टा अदरक का पानी परोसा गया था। ताऊ जी ने अपने शांत लेकिन दृढ़ अंदाज में कहा कि चोट में खट्टा नहीं खाना चाहिए, वरना ठीक होने में देर लगेगी। ये सिर्फ एक सलाह नहीं थी, उनके तजुर्बे और अपनापन से भरी हुई जिंदगी की एक बेशकीमती सीख थी। एक बार मैंने नादानी में वहां हाथ धोना शुरू कर दिया जहां ताजा सीमेंट लगा हुआ था। घर में सबको पता था कि वहां पानी नहीं डालना है, लेकिन मुझसे चूक हो गई। उस दिन ताऊ जी ने मुझे डांटा था। शायद गिनती के ऐसे ही कुछ पल थे, पर वो डांट भी गुस्से में नहीं बल्कि सख्त स्नेह और जिम्मेदारी के साथ थी। उसमें नाराजगी नहीं, समझ थी। और उस पल के बाद मन में कोई शिकायत नहीं, बस सम्मान और सीख रह गई। हम सब भाइयों में मैं सबसे छोटा था, इसलिए ताऊ जी का खास लाड मुझे मिला करता था। वो हमेशा मुझे महसूस कराते थे कि मैं उनके लिए कितना खास हूँ। उनका प्यार शब्दों में नहीं, लेकिन हर छोटे बड़े व्यवहार में झलकता था। राम ताऊ जी हमारे जीवन में ज्ञान, अनुशासन और निस्वार्थ प्रेम का एक मजबूत स्तंभ थे। उनकी मौजूदगी हमेशा एक भरोसे की तरह थी, ये एहसास दिलाने वाली कि असली ताकत शोर में नहीं बल्कि शांति में, अपने उसूलों और अपार करुणा में होती है। उनकी दी हुई सीखें, उनका अपनापन और उनका साथ हमेशा मेरे दिल में रहेगा। ताऊ जी, आप सच में अनमोल थे। आपका प्रेम और आपके मूल्य मुझे हमेशा राह दिखाते रहेंगे। जो पल आपके साथ बिताए वो हमेशा मेरे लिए अमूल्य रहेंगे। आपकी आत्मा को शांति मिले। आदरणीय ताऊ जी, आपकी कमी हमेशा महसूस होगी। प्रणाम। फैमिली में सभी के साथ बहुत सी मेमोरीज होती हैं जो हमारे माइंड में रहती हैं और जिन्हें हम याद करके खुश होते हैं। ऐसी ही कुछ यादें ताऊ जी के साथ भी रही हैं। देखने में स्ट्रिक्ट लगते थे पर वो बहुत सुलझे हुए इंसान थे। हम बहुत छोटे थे तब जब वह इटावा में रहते थे। एक बार दादी, मम्मी, पापा और हम तीनों भाई बहन इटावा पापा की कार से जा रहे थे, लेकिन वहाँ पहुँचने से पहले ही रास्ते में कार ख़राब हो गई। कुछ दूर तक हम सभी ने कार में धक्का लगाया, दादी ने भी, मगर ज़्यादा नहीं चल पाई। पर फिर पता नहीं कैसे ताऊ जी को इन्फॉर्म किया। वो चौबे जी ताऊ जी के जो फ्रेंड थे, जहाँ ताऊ जी काम करते थे, उन्होंने ट्रैक्टर से गाड़ी को बांधकर इटावा तक पहुंचवाया। हम लोग ट्रैक्टर में बैठकर बहुत खुश हुए। ये एक अलग ही एक्सपीरियंस था। जब देवास में रहते थे वहाँ भी हम लोग घूमने गए थे, उनके साथ त्रिशूल मूवी देखी, घूमे भी, बहुत एंजॉय किया। वो जब भी देवास से आते थे तब नारियल की बर्फ़ी ज़रूर लाते थे, बहुत ही बढ़िया होती थी और हम लोग बड़ा एंजॉय करते थे और उनके आने का इंतज़ार करते थे। उनके साथ मथुरा में भी काफ़ी अच्छा समय बीता। तब मम्मी और ताई जी दोनों बेड पर थीं, काम नहीं कर सकती थीं। मैं ताऊ जी की हेल्प करती थी, लेकिन रोटी वही बनाते थे, छोटी छोटी फूली फूली, और बहुत प्यार से सबको खिलाते थे और बहुत केयरिंग थे।
ऐसी बहुत सी यादें हैं जिन्हें हम आज भी याद करके खुश होते हैं और हमेशा उनका स्माइलिंग फेस आंखों के सामने घूमता है। कभी भी किसी के साथ गलत नहीं होने देते थे और ना ही पार्शियलिटी होने देते थे। सही को सही और गलत को गलत कहने में नहीं डरते थे। आज भी वो हमारे लिए इंस्पिरेशन है। Kapil says that respected Ram Tauji has always remained very special. He left us in 1991 with soothing feelings and many memories, teachings and love to all my siblings. We three sisters and brother have multifold phases to cherish about respected Tauji and Taiji's memories. It started from Mathura, followed by Etawah, Devas, Delhi, etc. Etawah's memories are first and so special that we mostly used to address him as Etawah Wale Tauji. Accounting and banking was a core part of his professional life. He had a special inclination towards our father, who served the banking sector by profession. We even have grey memories that sometime our father used to tell us that it was Ram Tauji only who inspired and supported him a lot to choose the banking field irrespective of his graduation in science. As far as his great personality and qualities, we all three siblings were fortunate to learn these during our transition phase between childhood to youth, when respected Tauji had a long stay at 32 Jagannath Puri, Mathura. It was really fun and a good time to be with him with his deep affection towards all children. We were always fascinated and motivated with his simple and straight personality. He was a good listener, had good reading habits, and many other qualities. As part of his Etawah's journey and long-lasting association with Chaube Motor Works, an authorized dealer of escorts, Rajdoot, we also have the privilege of possessing a pack of Escort-branded playing cards, which he had gifted to our father at one point of time and fortunately are still intact with me. This pack has been part of our family for the last 2 generations and hope to go a long way as a memory of respected Ram Tauji. All of us fondly remember respected Tauji on his 100th birth anniversary. I have learnt one Saundarya Lahari Shlokam written by Adi Shankaracharya, and this shloka is in Ragam Shivaranjani. Suddenly I remembered your mom and dad because I think we have sung Mere Naina. I don't remember, but your dad and mom used to enjoy that whenever I sang this song, no, they used to enjoy. So I just wanted you to listen to this Shivaranjani sloka. Okay. Kalankaha kasturi रजनिकर बिम्बं जलमयं कलाभिः कर्पूरैः मरकतकरण्डं निबिडितम् अतस्त्वद्भोगेन प्रतिदिनमिदं रिक्तकुहरम् विधिर्भूयो भूयो निबिडयति नूनं तव कृते. Family which we moved very closely is your family. Auntie and uncle, no, they showed such a love and affection towards us. We were just floored. We were in fact
we were poured love. They poured love on us, and it was so beautiful, and inhibitions. So we just enjoyed our Deva stay, and whenever we wanted, we used to come to your house. Daddy would be ready to make tea and biscuits, whatever was available. He'll give some snack, and talking about movies, songs. It was really, we didn't feel that your house was something different. We felt your house is also our house. After kids were born, love and affection doubled towards us. We 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 saw the children growing up into a responsible children. I have not seen any small children taking so much of responsibility. That was really a what I should say. I learned something from the children, how to be tensionless, how to be taking things, how to how to manage the things. And once when auntie was to undergo this blood transfusion, so beautifully Shruti and your son managed so nicely. So I was really surprised. And I don't know, your family used to be a what do you call role model family for us. And music was a ultimate binding dhara. So it bound all of us. So when we start music, no, we wouldn't know the time, since mom and dad are music lovers and you are the pakka musician. We used to have a wonderful music session, and dad and mom used to encourage me so much. So it's really, I go back to 80s, 78, 79, 80s, no? These were the years we spent. We were in Devas, and we were with you. That kind of bonding, that kind of affection, we both rarely see any family binding like this. So when dad used to go to some places, he used to travel, and he used to write accounts for some company, and those are the things, no, we used to really appreciate, and we used to be very proud of him. Even after retirement, he was working. Amma, auntie and uncle were there. They were like a big support for us. And Ashokji also.
was a wonderful singer, and we used to sing duets so nicely. I just say a big thanks to auntie and uncle because they have taken us to Ashokji's wedding, the huge wedding, and introduced to all your relatives and the simple and very nice people. All the Mathura people are very nice and very simple, very down to earth, practical. So I can never forget Mathura Vasi. I can never forget. But uncle and auntie are super characters. How can I forget them? It is our fortunate that we were able to mingle with them. We are missing auntie and uncle also. So we still feel those Deva's days. Will it ever come back? No, that is the feeling we have. Okay, bye. और ये एक प्रस्तुति है शंकर की तरफ से, संगीत का बेटा। रमैया वस्तावैया रमैया वस्तावैया रमैया वस्तावैया रमैया वस्तावैया मैंने दिल तुझको दिया मैंने दिल तुझको दिया ओ रमैया वस्तावैया रमैया वस्तावैया रमैया वस्तावैया रमैया वस्तावैया
छुपतिया ओ रमैया वस्तावैया रमैया वस्तावैया। नैनों में थी प्यार की रोशनी, तेरी आंखों में ये दुनियादारी न थी, तेरी आंखों में ये दुनियादारी न थी। तू और था तेरा दिल और था, तेरे मन में ये मीठी कटारी न थी, तेरे मन में ये मीठी कटारी न थी। मैं जो दुख पाऊं तो क्या आज पछताऊं तो क्या, मैं जो दुख पाऊं तो क्या आज पछताऊं तो क्या। मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया ओ रमैया वस्तावैया रमैया वस्तावैया। उस देश में तेरे परदेश में सोने चांदी के बदले में बिकते हैं दिल, सोने चांदी के बदले में बिकते हैं दिल। इस गाँव में दर्द की छाँव में प्यार के नाम पर ही धड़कते हैं दिल, प्यार के नाम पर ही धड़कते हैं दिल। चांद तारों के तले रात ही गाती चले, चांद तारों के तले रात ही गाती चले। मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया ओ रमैया वस्तावैया रमैया वस्तावैया। मैंने दिल तुझको दिया ओ रमैया वस्तावैया रमैया वस्तावैया रमैया वस्तावैया रमैया वस्तावैया। मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया ओ रमैया वस्तावैया रमैया वस्तावैया। याद आती रही, दिल दुखाती रही, अपने मन को मनाना ना आया हमें, अपने मन को मनाना ना आया हमें। तू ना आए तो क्या, भूल जाए तो क्या, प्यार करके भुलाना ना आया हमें। अगर हमारे पूर्वज नहीं होते तो हम भी नहीं होते। उनके द्वारा दी गई जीन्स तो हमें मिली ही हैं, साथ में मिली है एक ऐसी अपब्रिंगिंग जिसमें है एक यूनिक कल्चर, गुड वैल्यूज, एथिकल स्टैंडर्ड्स, एक सिंपल लिविंग और वर्किंग हार्ड का तरीका। अगर एक एडवेंचरस स्पिरिट है तो एक प्रैक्टिकल अप्रोच भी है, एक आभास कि दूसरों की मदद करने से जो खुशी मिलती है वो वास्तव में सात्विक होती है। कोई बीड़ा उठाना, उस काम को अंजाम देना, अगर कोई वादा किया उसको निभाना, बड़ों का सदैव आदर करना। पितामह जी की आखिरी पोस्टिंग पुनाने में थी, मगर जगह जगह ट्रांसफर होते रहने से बच्चों की पढ़ाई में डिफिकल्टी होती थी। तो मथुरा में उनकी माता जी श्रीमती चंदा देवी वो रहा करती थी। दादाजी का पूरा परिवार भी मथुरा में ही था। दादी जी जो थी वो सबसे छोटी थी घर में, 3 भाइयों और 2 बहनों के बीच में। इसलिए बच्चों समेत परिवार मथुरा शिफ्ट हो गया। पहले पत्थर घाटों वाले पत्थर के घर में रहे, फिर मंडी रामदास और फिर जगन्नाथपुरी, जिसके सामने उस समय जन्मभूमि का मंदिर बन रहा था। वहां पर 2 प्लॉट खरीदे गए थे, 32 नंबर और 38 नंबर। 32 नंबर भरत चाचा जी और मुन्ना चाचा जी के लिए था, 38 नंबर पिताजी और लक्ष्मण चाचा जी के लिए था। 32 नंबर तो 1957 में बना, मगर 38 नंबर को 1974 में आपस में बात करके पिताजी ने और लक्ष्मण चाचा जी ने उसको बेच दिया
क्योंकि दोनों में से कोई भी फाइनली मथुरा आके सेटल होने में इंटरेस्टेड नहीं था। पितामह जी की पर्सनैलिटी बहुत रोबेली थी, मगर पिताजी की तरह वो भी ऊपर से सख्त मगर अंदर से मुलायम व्यक्ति थे। उनकी डायरी में एक जगह एंट्री है, कल वाइफ के साथ पिक्चर देखी, सती अनुसुईया बहुत अच्छी थी। बाकी डायरी में 1950s के फैमिली के समय की इंटरेस्टिंग एंट्रीज हैं। कब कौन आया और गया, कब किसकी चिट्ठी आई, मुन्ना चाचा जी की वेटनरी कॉलेज में नौकरी लगने का जिक्र है, और उनकी पहली तनख्वाह भी लिखी हुई है। सारे बच्चों की डेट्स ऑफ बर्थ, टाइम्स, और उसकी एंट्री हैं काफी जाने माने उस समय के नेताओं की, जैसे पटेल साहब या स्वामी विवेकानंद या नेहरू जी, तो सबके कोटेशंस लिखे हुए हैं। और डेट ऑफ बर्थ जो है वो मेरी और राजू की तक की लिखी हुई है उनकी। वर्जिश करने का उनको बहुत शौक था। सर्दी के दिनों में पीछे के आंगन में सीढ़ियों के नीचे धूप में तेल मालिश करके उनका वर्जिश करना मुझे अभी भी याद है। काफी साल बाद वहां दादी जी की कोठरी बन गई थी। 1964 के साल में काफी कुछ हुआ बदलाव। मार्च के महीने में मैं वहीं था जब पितामह जी चल बसे। ठाकुर जी के रूम में वो चारपाई पर लेटे हुए थे, उनसे सांस नहीं ली जा रही थी। कांपते हाथों से मुन्ना चाचा जी ने उनको एक इंजेक्शन भी लगाया, मगर वो रिवाइव नहीं हो पाए। फिर 26 मई को आगमन हुआ पूनम का। 27 मई को नेहरू जी चल बसे। पिताजी, विजय मामा जी, अनु और मैं, हम सभी दिल्ली गए उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए, मगर भीड़ भड़का इतना ज्यादा था कि हम ऐसे ही लौट आए। वो कौन सा पुल है, तिलक ब्रिज से आगे ट्रेन गई नहीं। मतलब पिताजी के बारे में यहाँ आप सबने इतनी अच्छी भावनाएं व्यक्त की हैं, इस सहयोग के लिए जितना भी धन्यवाद करूं वो कम होगा। क्या आपने ऐसे पिता देखे हैं जो अपने 10-11 साल के इकलौते बेटे को कहें कि बेटा, अगर कभी सिगरेट पीने का मन करे तो छुप के मत पीना, चोरी से मत पीना, उल्टे मुझसे पूछ लेना कि कौन सी ब्रांड जो है वो सबसे सेफ होती है पीने के लिए। उनका जन्म अमृतसर में 15 अप्रैल 1925 को हुआ था। देशभक्ति का प्रभाव था। एक बार पितामह जी जिस जेल में एज अ डॉक्टर काम कर रहे थे, वहां पर एक ब्रिटिशर की साइकिल पे पत्थर मार दिया था। और काफी स्वतंत्रता सेनानी थे हमारे, जो उनके बहुत करीबी दोस्त थे। जब भी वो घर पे आते थे और ब्रिटिशर्स के हाथ से जेल में जिस तरह का टॉर्चर उनका हुआ होता था, तो वो रोंगटे खड़े करने वाली स्टोरीज होती थी। गुस्सा उनका बहुत तेज था। वो 10th क्लास से आगे नहीं पढ़ पाए, मगर उनको इस बात पर बहुत फख्र था कि मम्मी जी और मैंने काफी आगे की पढ़ाई की थी। अपने कैरियर की शुरुआत की उन्होंने टाटा एयरक्राफ्ट आगरा से। उस समय शायद नाई की मंडी में रहते थे। वहीं पर दादी जी के भी रहते बिज्जी जी का जन्म हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को, करवा चौथ के दिन। जीजी के अनुसार वो सब बच्चों को बहुत प्यार करते थे। प्रभात भाई साहब के अनुसार उन्होंने कुछ समय रावली वाले घर में फूफा जी को उनके मोमबत्ती के काम में सहायता करवाई थी। कुछ वर्कर्स वहां पे मोम चुराते थे, नाली से बहा देते थे उसको, तो उनको पकड़वाया। उसके बाद में खैर इलाहाबाद बैंक ज्वाइन कर लिया था। 22 नवंबर 1949 में शादी हुई। बारात मारू गली से माता गली गई थी। उस दिन
बिज्जी जी गुम गई थीं, बाद में कोतवाली में मिली, ऐसा प्रभात भाई साहब ने बताया। 1952 में जब मैं आया, उस समय पिताजी हरदोई में पोस्टेड थे। लक्ष्मण चाचा जी उस समय वहां पर मेडिसिन की एक दुकान चलाते थे। 1953 से 56 तक कलकत्ता में पोस्टेड थे। फिर दिल्ली में सिंधिया हाउस कैनॉट प्लेस की ब्रांच में रहे। 1960 में प्रमोशन मिला असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर के रूप में, और 1963 तक हैदराबाद में एबिट्स की ब्रांच में रहे। फिर बैंक की नौकरी छोड़कर कुछ दिन भाटिया क्लोथियर्स पर नानाजी और रवि मामा जी को सहयोग दिया। एक बार किचन में खाना खाते समय अक्षय चाची जी ने पिताजी से पूछा कि आप हमेशा अशोक के लिए नेगेटिव क्यों बोलते हैं। जी ने कहा कि इसको सुधारना मेरा काम है, अपने ही बेटे की तारीफ करता क्या मैं अच्छा लगूंगा। अगर सूरज ऊपर चढ़ रहा है तो सब अपने आप देख ही लेंगे। 1966-67 में प्रेम मामा जी काफी समय इटावा के सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट में रहे। उन्होंने एक ट्रैक्टर की एजेंसी में अकाउंट्स का जॉब पिताजी के लिए अरेंज कर दिया। चौबे मोटर वर्क्स के संपर्क में आए और 1977 तक इटावा में रहे। फिर मेरे पास देवास में आ गए। CMW के अकाउंट्स बाई पोस्ट हैंडल करते थे, जब तक करते रहे जब तक तबीयत ने साथ दिया। वर्क फ्रॉम होम उन्होंने किया, हालांकि ये टर्म कोविड के बाद ही इस्तेमाल में आई। शुरू से ही देखा उनका पिक्चर का शौक। अक्सर इटावा से कानपुर जाना पड़ता था, वहां एस्कॉर्ट्स के डिस्ट्रीब्यूटर से नई राजदूत मोटरसाइकिल्स लाने के लिए। कई बार शाम 6 से 9 और रात 9:30 से 12:30 के शोज बैक टू बैक देखे जाते थे। डिनर की कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती थी। भुने हुए चने, मूंगफलियां, समोसा जो भी मिल जाता था उसी में हमारा काम चल जाता था। In November 1978, Ma arrived on the scene and then she became a member of the family. We were at Devas at the time. Marriage took place at Mathura. और फिर आगमन हुआ श्रुति और संकेत का, जिन्होंने उनको अपार खुशियां दी दादी दादा बना के। मम्मी संगीत विशारद थी, तो पिताजी को लाइव कॉन्सर्ट्स अटेंड करने में बहुत मजा आता था। कव्वालियां, तबलों के कॉन्सर्ट्स, सितार सभी उनको पसंद थे। 1981 के बाद हमारे साथ लुधियाना और चंडीगढ़ रहे। जब पंजाब में टेररिस्ट एक्टिविटी की वजह से हमने 1988 में दिल्ली शिफ्ट होने का प्लान बनाया, तो मम्मी पिताजी के लिए दिलशाद गार्डन में एक फ्लैट लेकर उनको दे पाए। इंग्लिश नॉवेल्स पढ़ने के शौक भी मुझे उनसे ही मिले, और जेम्स हैडले चेस, अर्ल स्टैनले गार्डनर, सर आर्थर कॉनन डॉयल, जी वुडहाउस, आर्थर हेली, इरविंग वॉलेस, फ्रेडरिक फोर्सेट, इन सब से परिचय हुआ। मेरी बर्थडे पर मुझे अलग से बुलाकर एक 50 रुपए का नोट थमाते थे, इससे कोई अपने लिए अच्छी सी बुक खरीद लेना। उनकी जिंदगी का फलसफा इस गाने में बिल्कुल सही बयान किया गया है। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा।
बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था। बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, मनाना फजूल था, मनाना फजूल था। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया। जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां। मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। ईश्वर ऐसे पिता सबको दें, ऐसे पिता जो फ्रेंड, फिलोसफर और गाइड हों, अपने शारीरिक स्वरूप में चाहे नहीं भी हों, मगर उनके दिए संस्कार, उनका आचरण और उनके मूल्य सदैव अपनी आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन करते रहेंगे।